Dear students, looking at the sample paper, the question number 34B, there is going to be A part and B part, and there is a choice between A and B. It is for 4 marks. Find the output of the SQL queries. There may be a change in the sequence of the question number, but this question type is going to be there. Find the output of the SQL queries. So some SQL queries will be given to you and you will be asked to find the output, and it is going to be for 4 marks. So let us practice this. This question is from the sample paper. Dr. Kavita has created a database for a hospital's pharmacy. The database includes a table named medicine whose column names are mentioned below. MID shows the unique code for each medicine. Now you look at the table as well as side by side MID. The MID column is here. This is for the unique code of the medicine. So this is for the hospital's pharmacy. MED name specifies the medicine name. So this second column is for medicine name. You can see the medicine name as paracetamol, amoxicillin, cough syrup, insulin, ibuprofen. Then SUPP city specifies the city where the supplier is located. So you can see the third column is supplier city. Stock indicates the quantity. Here you can see some quantities are given and some quantities are not given. DEL date specifies the date when the medicine was delivered. So delivery date is here. This is the unit price. So once you understand the question, you have understood the table, only then you go for the question and answer. Without looking at this table, don't jump to the question. Now the next here, the same table is here and the question is going to be like this. Write the output of the following SQL queries. So I have added more questions for practice here so that we can see if the question is based on any single row function or any aggregate function or on group by. So I've tried to cover almost all the functions. If the question is like this, select round unit price from medicine. So from this table आपको क्या कहा गया है, राउंड करना है यूनिट प्राइस. तो यूनिट प्राइस को राउंड करके ये सारी रोज का आंसर एक एक करके आपको लिखना है. आपको बाकी डिटेलिंग नहीं लिखनी है. यू सो आंसर इज गोइंग टू बी ओनली बेस्ड ऑन वन कॉलम. यूनिट प्राइस हेडिंग होगी और इसको राउंड ऑफ करना है. 20.05 विल बी 20. The decimal is not given. That means कोई डेसिमल नहीं चाहिए. डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं चाहिए. That means up to 0 decimal. 100.5 will become 101. 120 will remain as it is. 0.1 छोटा है 5 से, कट जाएगा 120 and then this is going to be 101 because decimal के बाद जो कट के जा रहा है वो 5 and above है. So your answer for the round is going to be like this. आपको यहाँ पे राउंड यूनिट प्राइस लिखना चाहिए और सारी वैल्यूज एक एक करके जो राउंड में आएगी वो लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी select power stock comma 2 from medicine where medicine name is equal to paracetamol. तो where जब लिखा है तो we are going to filter only the record which satisfy the condition. Medicine name जिसका paracetamol है. So select only those rows where the medicine name is paracetamol. So that means only one record. So it is saying for this particular filtered record, एक है इस केस में तो एक ही के साथ आंसर आएगा और एक से ज्यादा है तो उन सब के लिए आएगा. स्टॉक पावर निकालने. स्टॉक टू दैट मीन्स 200 कॉमा 2 मीन्स 200 raised to power 2 is 200 into 200. So answer is 40,000. आपको मैथ्स नहीं आता तो आप 200 into 200 लिख देना. Third question could be like this. Select medicine name from medicine where mod stock comma 10 is not equal to 0. So that means you have to check each record where the condition is true. रिमाइंडर दैट मॉड इज रिमाइंडर. सो स्टॉक कॉमा 10 करेंगे और वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं है. तो लुक एट द फर्स्ट वैल्यू 200. 200 को 10 से डिवाइड करा जाए तो
कोई भी बिकॉज द लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो वो 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर 10 से डिवाइड कर रहे हो, लास्ट डिजिट 0 है, सो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। सो इज इट नॉट इक्वल टू 0? इट इज इक्वल टू 0, तो ये फिल्टर नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड छोड़ दीजिए। 50 का भी लास्ट में 0 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 120 भी लास्ट में 0 है, तो 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा। नाउ दिस वैल्यू 135, व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 10, द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी द लास्ट डिजिट, दैट इज 5। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो आपका आंसर क्या है? सिलेक्ट मेडिसिन नेम जहां पर रिमाइंडर 0 नहीं है। सो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इस रिकॉर्ड का मेडिसिन नेम दैट इज इंसुलिन। सो द आंसर इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इंसुलिन। नेक्स्ट, I tried to give you the questions based on round, mod, and power. Let us see if this kind of the table is given and what could be the possible string functions can be asked. So maybe the question is based on the length of the medicine name or lowercase, uppercase, left से ये निकाल दो, right से वो निकाल दो, middle से value दे दो, पोजीशन बता दो। तो बस यही क्वेश्चंस होते हैं। ट्रिम कर दो। यही 4 5 6 क्वेश्चंस जो हैं वो स्ट्रिंग फंक्शंस पे बेस्ड होते हैं। सो लेट्स लुक एट ईच ऑफ इट वन बाय वन। सिलेक्ट लेंथ मेडिसिन नेम। तो मेडिसिन नेम में इन सब की लेंथ मांगी गई है फ्रॉम मेडिसिन इस टेबल में से वेयर स्टॉक इज मोर देन 100। तो वही रोज आपको सिलेक्ट करनी है जहां पे स्टॉक मोर देन 100 है। सो देयर आर 3 रिकॉर्ड्स। ये वाला रिकॉर्ड जिसमें स्टॉक 200 है, 120 है, 135 है, सो 3 रिकॉर्ड्स आर सिलेक्टेड। तो आउटपुट में इन 3 रोज के बेसिस पे आंसर आएगा। और आंसर क्या आएगा? दिस क्वेरी रिटर्न्स द लेंथ ऑफ मेडिसिन नेम फॉर मेडिसिन वेयर द स्टॉक इज ग्रेटर देन 100। तो पहला है स्टॉक 200 वाला पैरासिटामोल। पैरासिटामोल में कितने लेटर्स हैं, करेक्टर्स हैं? 11। नेक्स्ट 120 वाला स्टॉक दैट इज कफ सिरप। कफ सिरप में कितने करेक्टर्स हैं? आपको ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करना है, 12। एंड द लास्ट इज 135 स्टॉक, अगेन इट इज मोर देन 100। मेडिसिन नेम के कितने करेक्टर्स हैं? इंसुलिन के आपको एक एक करके काउंट करना है और वो 7 करेक्टर। नेक्स्ट, सिलेक्ट एलकेस मेडिसिन नेम। वेरी इजी। एलकेस मेडिसिन नेम जो है वो सारे स्मॉल लेटर्स में आने हैं, अपर केस में मेडिसिन नेम आना है फ्रॉम मेडिसिन। अगर वेयर क्लॉज होता तो कुछ रोज के साथ काम करते हैं आप। वेयर क्लॉज नहीं है तो सारी के सारे रिकॉर्ड्स का आंसर आपका आएगा। फर्स्ट रिकॉर्ड का पैरासिटामोल, पैरासिटामोल। सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड, all the records answer has to be taken and written in the answer। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? सिलेक्ट लेफ्ट से, राइट से, मिडल से पूछेंगे तो क्या पूछ सकते हैं? लेफ्ट मेडिसिन नेम कॉमा 2, दैट मीन्स 2 कैरेक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द मेडिसिन नेम, यहां से। एंड सेकेंड पार्ट इज राइट। राइट फंक्शन इज यूज मेडिसिन नेम कॉमा 2, 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द मेडिसिन नेम from the right side is to be extracted from medicine। अगेन अगर वेयर क्लॉज होगा तो आपकी कुछ ही रोज सिलेक्ट होंगी। यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं है तो इसका मतलब आपका आंसर 5 रिकॉर्ड्स के साथ चलेगा। सो हर रिकॉर्ड का आपका फर्स्ट रिकॉर्ड में से आंसर क्या निकल के आया? फर्स्ट 2 लेटर्स एंड द लास्ट 2 लेटर्स। लेफ्ट से 2 करेक्टर्स और राइट से 2 करेक्टर्स। लेफ्ट से 2 करेक्टर्स, राइट से, लेफ्ट से 2 करेक्टर्स, राइट से 2 करेक्टर्स, लेफ्ट से 2 करेक्टर्स, राइट से 2 करेक्टर्स, लेफ्ट से 2 करेक्टर्स, राइट से 2 करेक्टर्स। तो हर रिकॉर्ड का आंसर आपको लिखना है। Again, this is without the where clause, so answer is going to be of 5 lines, one answer for each row. Select mid medicine name comma 2। तो मिड मेडिसिन नेम कॉमा 2 जो है ये पोजीशन बता रहा है, मिडिल का है। मिडिल तो बता दिया कि पोजीशन 2 है, लेकिन कितने करेक्टर्स निकालने नहीं बताया। In the second part of this, substring is same as mid only. Medicine name की second position से 3 characters are to be extracted. So this query returns the medicine name starting from the second character.
स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड करेक्टर, ये पहले वाले केस की बात कर रहा है, एंड अ सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड करेक्टर, इस केस में सेकंड करेक्टर से स्टार्ट कर रहा है विद द लेंथ ऑफ 3। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली द आउटपुट इज ऑफ टू पार्ट्स, पहले पार्ट का और दूसरे पार्ट का। फर्स्ट आपका जो है पैरासिटामोल है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड पोजीशन, पूरा आ गया। और यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड पोजीशन बट 3 करेक्टर्स। सेकंड रो में चलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड पोजीशन, एम से स्टार्ट करना है, पूरा लिख दीजिए क्योंकि बताया ही नहीं है कितने करेक्टर्स निकालना है, बट सबस्ट्रिंग के केस में बता दिया दिस इज द पोजीशन एंड दीज 3 करेक्टर्स टू बी टेकन। नेक्स्ट देखेंगे कफ सिरप में सेकंड पोजीशन पे ओ है, लेकिन सारे करेक्टर्स उसके आगे के आ जाएंगे एज इट इज। और सबस्ट्रिंग के केस में बताया है कि सेकंड पोजीशन बट 3 करेक्टर। सिमिलरली इन द केस ऑफ इंसुलिन द सेकंड करेक्टर इज टू बी टेकन and all the letters which comes afterwards. Here second position 3 characters, total 3 characters, and similarly for the last record as well, second position onwards all the characters, second position onwards only 3 characters. Next, select in string medicine name comma a। in string ढूंढता है, it finds a position, a इसमें कहाँ है। एक और भी लिखा हुआ है इन स्ट्रिंग मेडिसिन नेम एमओ, एमओ मेडिसिन नेम में कहाँ है। वेयर क्लॉज नहीं है तो सारे 5 रोज के साथ काम चलेगा। सो इन स्ट्रिंग मेडिसिन नेम कॉमा ए, पहले पे वो जाएगा। मेडिसिन नेम पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल में ए, फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए इज एट सेकंड पोजीशन। और एमओ की पोजीशन कौन सी है आपको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे हमें एमओ मिला है तो यहाँ पे आंसर 9। सेकंड रिकॉर्ड पे चलिए, ए कहाँ मिला आपको, 1, सो देयर इज अ मिस्टेक, 1 लिखना है आपको। और एमओ कहाँ पे मिला है, 2 पे मिला है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे, ए कहाँ है, नहीं है, 0। एमओ कहाँ है, नहीं है, 0। इंसुलिन में ए कहाँ है, नहीं है, 0। और एमओ कहाँ पर है, नहीं है, 0। आइब्यूप्रोफेन में ए कहाँ है, देयर इज नो ए, सो आंसर इज 0। एमओ कहाँ है, नहीं है, 0। सो व्हेन द वैल्यू इज नॉट matched, it is not there, the substring is not present in the main string, the answer is C। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द डेट एंड टाइम फंक्शंस क्या पूछ सकते हैं और किस तरह से आंसर लिखना है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेडिसिन वेयर डे ऑफ डिलीवरी डेट इज इक्वल टू 5। आपने क्या करना है, आपको वेयर क्लॉज को पहले देखना है, डे ऑफ डिलीवरी डेट इज इक्वल टू 5, यहाँ डिलीवरी डेट में देखिए, इसकी डिलीवरी डेट डे, ये 15 21 10 25 एंड 5, तो ये जो डिलीवरी डेट है सिर्फ एक ही रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ है। और क्वेश्चन में लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेडिसिन, तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट होकर आपको आउटपुट में लिखना है, ये डॉट डॉट नहीं डालने हैं, आपको पूरा लिखना है। M05 ibuprofen मुंबई, then okay, this dash is for this value, stock की वैल्यू नहीं है, 100.90 and the date is here। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है और कैसे इसको देखना है। सिलेक्ट मेडिसिन नेम comma day of delivery date from medicine where medicine name like I percentage, जहां मेडिसिन नेम आई से शुरू हो रही है। आई से कौन कौन सी मेडिसिन शुरू हो रही है, आप सारे रिकॉर्ड्स एक एक करके देखो, फर्स्ट वाला तो नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ आई से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 2 रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए। सो आंसर इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दीज 2 रिकॉर्ड्स। क्या क्या आंसर में लिखना है आपको, आंसर में लिखना है मेडिसिन नेम, तो मेडिसिन नेम आपने इंसुलिन एंड आइब्यूप्रोफेन लिख दिया। और आपको क्या करना है, आपको डे ऑफ द डिलीवरी डेट भी लिखनी है, तो आप डिलीवरी डेट के कॉलम को देखोगे और यहाँ पर आपने देखा डे इज 25 एंड 5, अकॉर्डिंगली आपने लिखना है। नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मेडिसिन वेयर मंथ ऑफ द डिलीवरी डेट इज इक्वल टू 3, तो आपको रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है जहां पे मंथ 3 है। सो लुक एट दिस ऑल द रिकॉर्ड्स वन बाय वन। द फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं, मंथ तो 3 नहीं है। सेकंड रिकॉर्ड यस, यहाँ पे मंथ 3 है, सो दिस रिकॉर्ड इज सिलेक्टेड, दिस कंप्लीट रिकॉर्ड इज सिलेक्टेड।
02 नहीं, 01 नहीं, 04 नहीं, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आपका सिलेक्ट हुआ है। तो सिलेक्ट ऑल मतलब पूरा का पूरा आंसर आएगा, पूरा रिकॉर्ड आएगा। M02 एमोक्सिलिन कोलकाता 50 100.50 एंड द डिलीवरी डेट पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको रिकॉर्ड लिखना है। Next is select all from medicine where year of delivery date is equal to 2023। अब यहाँ तो 2023 वाले तीन रिकॉर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, पहला और लास्ट के दो। यस, द आंसर इज गोइंग टू बी फर्स्ट रिकॉर्ड पूरा लिखना है, फिर लास्ट के दो रिकॉर्ड्स पूरे लिखने हैं क्योंकि डिलीवरी डेट 2023 का ईयर है। तो तीन रिकॉर्ड सिलेक्ट हुए। Look at this. Select all from medicine where month name of delivery date is equal to March। तो आपको वापस डिलीवरी डेट के कॉलम में देखना है कि मंथ नेम किसका मार्च हो सकता है। मार्च किसका होगा जिसका 03 है। सो ओनली वन रिकॉर्ड इज सिलेक्टेड, बाकियों का तो मार्च नहीं बनेगा ना। So this query selects records where the delivery date is in the month of March by its full name। तो आंसर में वो वाला रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा क्योंकि सिलेक्ट ऑल कहा गया है, तो उस रिकॉर्ड के बारे में ऑल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी रिटन इन द आंसर। नेक्स्ट, again, based on the aggregate function, select max stock, minimum stock, sum of stock, average stock from medicine। तो यहाँ पे आपको जो है यदि देर आर फाइव टोटल फाइव एग्रीगेट फंक्शन मैक्स मिन सम एवरेज एंड काउंट। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं, एक एक रो के साथ आंसर नहीं देना है, उन्होंने एक ही आंसर देना है सारी रोज का मिलाकर। तो द आंसर दिस क्वेरी कैलकुलेट्स द मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, टोटल स्टॉक, एवरेज स्टॉक अक्रॉस ऑल मेडिसिन एंड द आंसर ऑफ द मैक्स स्टॉक इज 200। तो ये सिंगल रो फंक्शन है, ये एग्रीगेट रो फंक्शन है या इसको मल्टीपल रो फंक्शन है कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी रोज मल्टीपल रोज को इकट्ठा लेके इकट्ठा काम करता है और इकट्ठा आंसर देता है। तो मैक्सिमम स्टॉक ये पूरा जो है ये स्टॉक का कॉलम 250 120 135 पता नहीं, दिस इज पता नहीं। ओके, सो विच इज द मैक्सिमम वैल्यू 200, सो आंसर इज 200। मिनिमम स्टॉक विच इज द मिनिमम वैल्यूज, इसको वो इग्नोर करेगा, व्हेन द वैल्यू इज मिसिंग इसको इग्नोर करेगा, इसको देखेगा ही नहीं। हो सकता है ये मिनिमम वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, बीच की कोई वैल्यू, तो इसको वो देखेगा ही नहीं, वो सिर्फ जो वैल्यूज हैं उन्हीं वैल्यूज को देख के काम करेगा। सो इट इज जस्ट लुकिंग एट द फोर वैल्यूज। सो विच इज द मिनिमम वैल्यू अमंग दिस, 50 इज द मिनिमम वैल्यू। सम ऑफ स्टॉक इट इज गोइंग टू, जो वैल्यूज हैं उसी को ऐड करना होगा और आपको यहाँ पे सम करना होगा। in case you are very weak in maths, then you write here 200 plus 50 plus 120 plus 135। Otherwise I don't think you are so weak, you can actually do the addition and write the answer here। आपको ये चारों वैल्यूज को ऐड करके सम ऑफ स्टॉक में लिखना है। एवरेज ऑफ स्टॉक इज सम ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय द नंबर्स। कितने नंबर हैं, चार नंबर हैं, तो चार से आप इसको डिवाइड करेंगे। सो व्हेन यू आर फाइंडिंग द सम, आपको जो वैल्यूज दी हैं उनका सम निकालना है। जब एवरेज की बात हो रही है तो सम अपॉन द नंबर ऑफ वैल्यूज, वो 510 को 4 से डिवाइड करके। अगर आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, 510 डिवाइड बाय 4। Coming to the next question, select count all, count stock from medicine। This query counts the total number of rows in the medicine table and the number of rows where the stock value is not null। तो काउंट ऑल क्या कर रहा है, देख रहा है कितने रिकॉर्ड्स हैं। ये M01 वाला रिकॉर्ड है, 2 3 4 5 वाला रिकॉर्ड है, तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं। काउंट ऑल इज गोइंग टू से 5, आंसर इज गोइंग टू बी 5। इट इज काउंटिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। काउंट स्टॉक क्या कर रहा है, वो सिर्फ इस कॉलम पे जाके देखेगा कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, वो कहेगा मेरे पास तो चार ही वैल्यूज है, मैंने काउंटिंग करके देख लिया। नेक्स्ट, what is this B? B is nothing। Select supplier city, sum of stock from medicine group by supplier city। अब ये supplier city क्या होता है,